Assalamu alaikum and welcome back. Today's our topic is regarding the constants. हम समझेंगे कि constant क्या है और what are the various types of the constants. So quickly move to the topic without wasting our time. Constant is a very common word, as you can easily understand. Constant is a value that cannot change. Constant एक ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो सकती. अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे constant. So there are basically three types of the two broader categories are of the constant. So two को इसको देखते हैं और further इसमें जो types हैं वो डिवाइड कर लेंगे. Value that cannot change is called constant. Now we discuss what are its various types. तो दो types हैं, एक को हम बोलेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरी हमारी कहलाएंगी कैरेक्टर कांस्टेंट्स. Very simple. Numeric constants are the constant values that are in numeric form, that are in number forms. तो नंबर फॉर्म में जो कांस्टेंट होंगे उनको बोलेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. एंड द सेकंड वन इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट. कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे वो वैल्यूज हैं जो कि कैरेक्टर्स की फॉर्म के अंदर हैं. तो इनके अंदर दो तरह की, दोनों की टाइप्स हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की भी दो टाइप्स हैं. एक को हम बोलेंगे इंटीजर कांस्टेंट्स एंड द सेकंड वन आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स. Similarly, character constant also has two types, further categories. One is the simple character constant and the other one is called string constant. Numeric constants की भी हमारे पास दो types हैं. एक है integer constant and the other one is the floating point constant. Similarly, हमारे पास character constants में भी दो types हैं. Number one is a simple character constant and the other one is the string constant. Sorry. So quickly move to understand these two concepts. Numeric constants में पहली कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, that is integer constants. Integer numeric constants. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो कि नंबर की फॉर्म में हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डेसिमल पॉइंट. यानी कि होल नंबर जिसके अंदर फ्रैक्शन ना हो, रियल नंबर्स ना हो, जिनमें डेसिमल ना हो, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज को हम बोलेंगे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी नेगेटिव. लेट्स सपोज, सो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज without decimal point, and they can be positive or they can be negative. तो ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं. अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो 2 - 13 - 10 1 they are all इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. ये वो नंबर हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है और इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. नाउ क्विकली मूव टू द अदर टाइप. द अदर टाइप इज द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. Floating point constants are the numeric values having a decimal point or fraction, or you can say it's the real values. तो ये वो आपके values हैं जिनके अंदर numeric values having decimal oblique fraction, जिनमें decimal भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो, मतलब बटे की फॉर्म में जो वैल्यूज है अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल फॉर्म, और इनको हम रियल वैल्यूज भी बोलते हैं. दे ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और
नेगेटिव भी हो सकती हैं, लाइक 2.7, 3.1, -1.8, -10.3, etc. These are all examples of the floating point constants. Now quickly move to the other broader categories, and the next broader categories is the character constants. Character constants are the values that may involve the following categories. It may involve, they may include alphabets from A to Z or A to Z. See the case sensitive language, so lower case and upper case को आप different treat करेंगे. Plus they can be special symbols like @ pound, dollars, asterisk, etc. And they can be any numeric digit. So one thing, what could be a character constant? It can be an alphabet from A to Z, lowercase and uppercase both. It can be a special symbol or it can be a numeric digit. Number 2, what is next very important point about the character constants? Point number 1, point number 2, character constants are always alone. The word alone is important. जब आप character constant लिख रहे होंगे तो वो अकेला होगा, इकलौता होगा. कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी एक डिजिट हो सकता है, कोई भी एक साइन हो सकता है. And the number 3, they are always written in single quote. आप इनको हमेशा सिंगल कोट में लिखेंगे. सो अगर हम यहां पर लिखें A, सो इट कैन बी अ कैरेक्टर कांस्टेंट. अगर हम लिखते हैं $, it can be a character constant. Similarly, if we write 9 in the single quote, it can be a character constant because it is a single digit having a single quote marks. But if we write A9, it cannot be a character constant, and the reason you easily know. Then if you write 10, it can also not be a character constant. So if, as I'm saying, that it may include numeric digits, so numeric digit from 0 to 9, because 0 से 9 तक जो डिजिट है वो सिंगल हैं. उसके बाद 10, 11, 12, तो ये मोर देन 1 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट हो जाएंगे तो फिर वो आपका करेक्टर, आप उसको करेक्टर कांस्टेंट नहीं कह सकेंगे. सो सिंगल अलोन अल्फाबेट with a single quote is a character constant. Special sign, single alone with a single quote, digit alone with a single quote, they are all character. But यहाँ पर हमारे पास एक अल्फाबेट हो रहा है और एक डिजिट हो रहा है, because they are more than 1, 2 हो गए ना, तो ये आपका character constant नहीं हो सकता. इसी तरह आप यहाँ पर लिखते हैं पार्क, लिख दें और सिंगल कोड लगा दें, तो ये भी आपका करेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता. सिंगल कोड तो है, ये अल्फाबेट भी है, लेकिन ये अलोन नहीं है. तो तीनों कंडीशंस का मैट होना जरूरी है. ठीक है जी. तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया करेक्टर कांस्टेंट क्या है. नाउ क्विकली मूव टू द इट्स सेकंड टाइप, दैट इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग कांस्टेंट, there is a very slight change between the character constant and the string constant. Number 1, string constant, because string is a further type of a character constant. String may include alphabets from A to Z. String may include special symbols like @ pound sign, dollar sign, asterisk sign,
and they can also include the numeric digits from 0 to 9. But next 2 points are the different. Character constants are not alone. ये alone नहीं होते, single नहीं हो सकते. Are not alone. ये single नहीं हो सकते. And number 1, they are always written in double quotes. They are always written in double quotation mark. आप इसको डबल कोट्स में लिखेंगे. अगर यहां पर A1 हम लिख दें और इसको डबल कोट कर दें तो ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा. डॉलर के साइन $2 कर दें और डबल कोट्स कर दें तो ये डॉलर साइन हो जाएगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट. यहां पर इसको 19 कर दें, डबल कोट्स कर दें तो ये सिंगल हो जाएगा. ये पाक 3 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है और इस पर अगर हम डबल कोट्स लगा दें तो ये भी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा. इसको मैंने करैक्टर में कहा था, ये करैक्टर नहीं है, बट अगर आप इसको डबल कोट्स लगा देंगे सो नाउ इट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट. ये 10 को मैंने कहा था ये करैक्टर नहीं है, लेकिन अगर इस 10 को मोर देन 1 करैक्टर हो गया और इसके ऊपर डबल कोट्स लगा देंगे तो ये भी हमारा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हमारे पास कांस्टेंट्स क्या है और उनकी टाइप्स क्या है. इसमें जो टिपिकल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेने वाला जो टॉपिक था वो करेक्टर कांस्टेंट्स है, बिकॉज करेक्टर्स कांस्टेंट्स आर समटाइम्स मैच विद द इंटीजर वैल्यूज. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक इफ आई राइट 9 and 9, so this 9 is integer and this 9 is a character. कैसे पता चला? सिंगल कोट से पता चला. अगर सिंगल कोट्स हैं तो ये करैक्टर है और सिंगल कोट्स नहीं है तो ये इंटीजर है. तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जरूरी है. हम आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे कि 9 करैक्टर और 9 नंबर में एक्चुअली क्या डिफरेंस है. जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का आइडिया है, डू राइट दिस इन योर कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.